अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इंसाइटफुल आइज। आज हम बात करेंगे सूरह जिन के बारे में कि कुरान सिर्फ इंसानों पर नाजिल नहीं हुआ, ये जिन्नात पर भी नाजिल हुआ है और किस तरह नाजिल हुआ है ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इस राज को। कभी सोचा है कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतरा। एक ऐसी रात थी जब सुनने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि नादीदा मखलूक थी, जिन्नात। वो सुनने आए, दिल बदल गए और ईमान ले आए। ये वो लम्हा था जब आसमान और जमीन के दरमियान एक नया दरवाजा खुला, हिदायत का दरवाजा। यही है सूरह जिन की कहानी, एक ऐसी सूरत जो इंसान और जिन दोनों के ज़मीर को झंझोड़ देती है। ये वाकया उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत लोगों को सुनाया करते थे। लेकिन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर निकले, मकाम नखला की वादी में। ये रात पुरसुकून थी, हवा में ईमान की खुशबू थी। नबी ने फजर की नमाज में कुरान की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हर लफ्ज़ फिजा में गूंज रहा था। और फिर एक हैरत अंगीज वाक़या पेश आया। ज़मीन पर तो शायद उस वक्त कोई ना सुन रहा था, मगर फिजा में जिन्नात का एक काफिला गुजर रहा था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ सुनकर रुक गए, उनके दिल कांप उठे। ऐसा कलाम जो कभी किसी ने न सुना था। कुरान की तासीर उनकी रूहों को छू गई और वो कहने लगे, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا تو وہ بول اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، جو سیدھی راہ دکھاتا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نادیدہ مخلوق نے قرآن کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب وہ اپنے قبیلوں میں واپس لوٹے تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ قرآن کی تاثیر ان کے اندر ایک طوفان بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ جنات کے ایمان کی دعوت تھی جو ان کے دلوں سے نکلی تھی۔ لیکن جنات کے لیے ایک اور حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جنات آسمانوں کے قریب تک چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے اور پھر زمین پر آ کر کاہنوں اور نجومیوں کو وہ خبریں بتایا کرتے تھے۔ نجومی ان میں کچھ سچ اور بہت سا جھوٹ ملا دیتے اور لوگ سمجھتے کہ انہیں علم غیب حاصل ہے۔ مگر جب قرآن کی وحی کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سخت پہرے بٹھا دیے۔ اب کوئی جن آسمانوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ سورہ الجن آیت نمبر 9۔ اور ہم جنات آسمان کے قریب سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اس پر آگ کا شعلہ پھینکا جاتا ہے۔ یہ وحی کی حفاظت کا اعلان تھا۔ اللہ نے آسمانوں کو بھی محفوظ کر دیا تاکہ قرآن تک کسی جھوٹ یا جال سازی کا سایہ نہ پڑ سکے۔ جب جنات نے یہ منظر دیکھا کہ آسمانوں پر شہاب ثاقب چل رہے ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے نبی کی تلاوت سنی تو انہیں معلوم ہو گیا یہ سب اسی عظیم واقعہ کا پیش خیمہ ہے، قرآن کے نزول کا۔ قرآن نے جنات کو حقیقت دکھا دی۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ پہلے غلط راستے پر تھے،
झूठे कहने वालों के पीछे चलते थे। वन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, और हम समझते थे कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठ नहीं बांधेंगे। मगर जब उन्होंने कुरान सुना तो सच सामने आ गया। उनकी आंखों से गफलत के पर्दे उठ गए। वो जान गए कि असल इल्म, असल हिदायत कुरान ही में है। उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं थे। फरिश्ते ऊपर, जिन्नात नीचे, और दरमियान में अल्लाह का कलाम कुरान। ये वो रात थी जब एक नादीदा कौम ईमान ले आई और वही के दरवाजे से रोशनी ज़मीन पर उतरने लगी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सूरह जिन में अल्लाह ताला ने जिन्नात के अकायद, उनकी अक़साम, उनके अंजाम और इंसान के लिए मौजूद सबक को किस तरह बयान किया। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल सबक तो अब शुरू होता है। जिन्नात ने कुरान सुना, ईमान कबूल किया, मगर वो सब एक जैसे नहीं थे। जैसे इंसानों में नेक व बद होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी दो रास्ते थे, हिदायत का और गुमराही का। वन्ना मिन्ना सालिहूना व मिन्ना दून ज़ालिका कुन्ना तराइका किददा, और हम में कुछ नेक हैं और कुछ इसके अलावा। हम मुख्तलिफ राहों पर बटे हुए हैं। ये अल्फाज जिन्नात की ज़बान से निकले। काश इंसान भी अपनी हकीकत यूं तस्लीम कर लेता। आज इंसान भी तो उसी तरह बट चुका है, फ़िरक़ों, नज़रियात और ख्वाहिशात के धड़ों में। जिन्नात ने पहली बार इस बात का ऐलान किया कि उनका रब सिर्फ एक है। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, और बेशक बुलंद है हमारे रब की बुजुर्गी, उसने न बीवी बनाई न औलाद रखी। क्या कमाल की बात है कि जिन्नात ने तो तौहीद को पहचान लिया, मगर आज इंसान जो कुरान पढ़ता है वही तौहीद में शक करता है। अल्लाहु अकबर। कभी जिन्नात आसमान पर उड़ते थे और इंसान जमीन पर ठोकर खाता था। आज भी यही हाल है, बस शक्लें बदल गई हैं। मगर हर जिन ईमान वाला न था। कुछ जिन्नात ने इनकार किया, सरकशी की। अल्लाह ताला ने सूरह जिन में उनके अंजाम की खबर दी। वम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, और जो जालिम हैं वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। सोचो, जिन्नात जिन्हें हम नादीदा समझते हैं, उनके लिए भी हिसाब, जज़ा और सज़ा मुकर्रर है। अल्लाह के दरबार में कोई इस्तिस्ना नहीं, न वो बच सके न हम बचेंगे अगर हमने गफलत की। जिन्नात ने जब हकीकत जानी तो उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। वअन्ना लम्मा समिअना अल-हुदा आमन्ना बिही फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहक़ा, और जब हमने हिदायत कुरान सुनी तो हम ईमान ले आए। जो अपने रब पर ईमान लाता है उसे न किसी कमी का खौफ है न जुल्म का। ये है कुरान का वादा, ईमान वालों के लिए अमन, यकीन रखने वालों के लिए सुकून। जिन्नात बदल गए क्योंकि उन्होंने कुरान को दिल से सुना। हम भी बदल सकते हैं अगर सुनना शुरू कर दें, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा तो जिन्नात ने न सिर्फ अल्लाह की तौहीद मानी बल्कि आपके मकाम को भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा, वन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह यदऊहु कादू यकूलून अलैहि लिबदा, और जब अल्लाह का बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो जिन्नात उसके गिर्द हुजूम की तरह जमा हो गए। ये वो लम्हा था जब पूरी कायनात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के सामने सर झुका दिया। जिन्नात जो कभी सरकश थे अब आशिक बन गए। सूरह जिन हमें सिर्फ जिन्नात की कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक आईना दिखाती है इंसान के लिए। जिन्नात ने सुना, ईमान लाए, इताअत की, और इंसान जिसके पास कुरान है वही गाफिल है। वल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति लास्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, और अगर वो सीधे रास्ते पर कायम रहते तो हम उन्हें खूब पानी यानी रिज़्क़ अता करते। अल्लाह ने वादा किया है, हिदायत पर कायम रहो तो बरकत खुद चल कर आएगी। मगर हमने क्या किया? हमने कुरान छोड़ दिया, हमने ईमान को रस्म बना दिया। आज इंसान टेक्नोलॉजी से आसमानों तक पहुंच गया मगर रूह से दूर हो गया। जिन्नात ने ईमान से उरूज पाया और इंसान ने गुरूर से जवाल।
जिन्नात का सबसे बड़ा एतराफ़ ये था कि वो वही की हिफाजत नहीं कर सकते। कुरान सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में है। ये कुरान सिर्फ कलाम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक जिंदा मौजज़ा है। वो जिन्नात जो कभी आसमान से खबरें चुरा लाते थे, अब खुद कहने लगे, हमें इल्म गैब नहीं, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ईमान लाना पहली मंजिल है, अमल उसका सबूत। जिन्नात ने कहा, वन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्दि वलन नुअजिज़हु हरबा। और हमने समझ लिया कि हम न ज़मीन में न भागकर अल्लाह से बच सकते हैं। यही एहसास ईमान का निचोड़ है कि बंदा समझे, मैं आज़ाद नहीं, मैं जवाबदेह हूँ। अल्लाह ताला ने जिन्नात की ज़बानी हमें सबक दिया, वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिह फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहका। जो अपने रब पर ईमान लाए उसे किसी कमी या जुल्म का खौफ नहीं। यह है ईमान की रोशनी जो दिल को इत्मीनान देती है। अगर नादीदा मखलूक जो कुरान को पहली बार सुन रही थी ईमान ले आई, तो हम क्यों नहीं? जिन्होंने कभी नबी को देखा नहीं वो भी कुरान के अल्फाज पर लरस गए, और हम जिनके हाथों में कुरान है, हम कब जागेंगे? सूरह जिन हमें बताती है, हिदायत वहाँ नहीं जहाँ आवाज़ बुलंद हो, हिदायत वहाँ है जहाँ दिल झुक जाए। जिन्नात ने सुनकर मान लिया, इंसान ने सुनकर भुला दिया। और यही है क़यामत का सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमने कुरान सुना था? और अगर सुना था तो तुम्हारे दिल ने क्या जवाब दिया? ज़माना बदल गया है। इंसान चांद पर जा पहुंचा, सितारों को नाप लिया, ज़मीन के सीने में छुपे राज खोल डाले, मगर एक राज आज भी बंद है, दिल का राज। आज इंसान के पास इल्म है मगर सुकून नहीं, ताकत है मगर यकीन नहीं, दुनिया का हर दरवाज़ा खोल लिया मगर अपने रब के दरवाजे तक जाना भूल गया। और यही वो जगह है जहां सूरह जिन हमें आईना दिखाती है। हम जिन्नात से डरते हैं कहीं वे नुकसान न पहुंचा दें, लेकिन क्या आप जानते हैं वो जिन्नात जिनसे हम डरते हैं खुद अल्लाह से डरते हैं। वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फउलाइक तहर्रव रशदा। सूरह अल जिन आयत 14। और हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ जालिम गुमराह हैं। वो जिन्नात जो कभी आसमानों में उड़ते थे कुरान सुनकर सिजदे में गिर गए, और आज इंसान जिसके हाथ में कुरान है वो दुनिया के पीछे भाग रहा है। हम जिन्नात की बातों को कहानियां समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह ने सूरह जिन में उनके ज़रिए हमें जगाया। और आज हम कुरान की दावत फैलाते नहीं बल्कि बहस करते हैं। हमने ईमान को ज़बानी रख लिया और दिलों को खाली छोड़ दिया। जिन्नात ईमान ले आए और इंसान आज भी शक में है। ये आयतें जिन्नात के ईमान का बयान नहीं, ये इंसान के ईमान की शर्मिंदगी हैं। अल्लाह ताला ने सूरह जिन के आखिर में सख्त पैगाम दिया, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। सूरह अल जिन आयत 26। वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। ये ऐलान है, नजूमी, काहिन, जादूगर, किसी के पास इल्म गैब नहीं, न इंसान न जिन। जो कुछ जानता है वो सिर्फ अल्लाह है। फिर क्यों आज भी लोग सितारों से किस्मत पूछते हैं? क्यों तावीज़ों, आमिलों और जादू के पीछे भागते हैं? क्या हम वही गलती नहीं कर रहे? सूरह जिन का इख्तिताम एक ऐलान से होता है, एक वादा, एक उम्मीद, एक पुकार। लिनफ्तिनहुम फीहि वमन युअरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअदा। ताकि हम उन्हें उसमें आजमाएं, और जो अपने रब के ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे सख्त चढ़ाई वाला अजाब चढ़ाएगा। ये आयत सिर्फ माजी के जिन्नात के लिए नहीं, ये आज के इंसान के लिए है। अगर हमने कुरान को छोड़ दिया तो हमारी दुनिया अजाब बन जाएगी, और अगर हम लौट आए तो यही कुरान हमारी नजात का ज़रिया बनेगा। जिन्नात ईमान ले आए और आज वो वाक़या कुरान की आयतें बन गया। अल्लाह ने दिखाया कि हिदायत की कोई हद नहीं, न ज़मीन न आसमान, बस दिल खुलना चाहिए।
सूरह जिन हमें ये सिखाती है कि अगर जिन्नात सुनकर ईमान ला सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। ये कुरान यही वो आवाज़ है जिसने आसमानों को हिला दिया, जिन्नात को बदल दिया और ज़मीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे हिदायत का दरिया बहा दिया। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, ज़िंदगी बेमानी लगती है, तो एक बार, बस एक बार कुरान को वैसे सुनो जैसे जिन्नात ने सुना था, खामोशी से, अकीदत से, यकीन से। फिर देखना तुम्हारी रूह में भी वही रोशनी उतरेगी जो नखला की वादी में उतरी थी। यह है सूरह जिन, पोशीदा मखलूक की गवाही और ज़ाहिर मखलूक के लिए तंबीह। ईमान उनके लिए रोशनी बना और हमारे लिए एक याद दहानी। अगर जिन्नात बदल सकते हैं तो तुम भी बदल सकते हो। अगर ये बात दिल में उतर गई हो तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर ना करो, खुद पर अमल करो। कुरान सुनो, समझो और अपने रब से दोबारा रिश्ता जोड़ लो, क्योंकि जो अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाए वो कभी अकेला नहीं रहता। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो का मकसद भी समझ आ गया होगा। आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी इस पर अमल करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।